As we all know, September is the PCOS month, and hence here we are with the PCOS presentation. It's a very common problem. First of all, let us see what is PCOS. PCOS means polycystic ovarian syndrome. What is it? It's very important to know because many a times a girl comes in our chamber and just tell us I am having PCOS because she is diagnosed on sonography. She has been told by the her sonologist that she is having PCOS or PCOS. What is it? It's very important to know this. There are multiple symptoms which can one can have and one can think of the person is having PCOS. First of all, the first symptom is generally the patient is having irregular periods. पीरियड कभी आता है, कभी नहीं आता है, कभी लेट आता है, कभी कम जाता है, कभी ज्यादा जाता है. दैट इज इरेग्युलर पीरियड. डेट वाइज नहीं आता है, इसके लिए काफी सारी लड़कियां वरीड होती है. This is called irregular period. If you are having irregular period, then there might be some chance that you are having polycystic ovarian syndrome. If you are gaining weight suddenly, but gaining weight, अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो वेट बढ़ने के पीछे कई सारे रीजंस है. लाइक सीडेंटरी लाइफस्टाइल, आप आराम से बैठे होते हैं, घर में कोई काम काज नहीं करते हैं, या फिर आप पढ़ाई करते हैं तो बैठे बैठे भी मोटापा होता है. If you are gaining weight, then again it could be a sign of PCOS, but it is not necessarily unless and until your doctor tells you. If you are having acne or pimples and extra hair growth, that is hirsutism. This extra hair growth is just like a male pattern of hair growth, स्पेशली ऑन योर फेस. मूछे आना, दाढ़ी जैसे बाल आना, इसको बोलेंगे हम लोग हिरसुटिज्म. दैट इज बिकॉज ऑफ द मेल हार्मोन विच इज डोमिनेंट इन PCOS. एंड इफ यू आर मिसिंग योर पीरियड्स, जनरली व्हाट इज अजम्पशन, जनरल अजम्पशन ऑफ अ गर्ल इज हर महीने में पीरियड आना चाहिए, डेट पे आना चाहिए. दिस इज देयर अजम्पशन, but this is not so with PCOS. Many times in PCOD or PCOS, periods comes late or maybe delayed by a period more than 3 months or 6 months. Then it can be a sign of PCOS. So these are the few signs. Like if you are having irregular, अगर आपके इसमें से कोई भी symptoms है, पीरियड रेगुलर नहीं होना, वेट गेन हो रहा है, एक्ने है, हिरसुटिज्म है, या अगर आपका पीरियड बहुत लेट आ रहा है और पीरियड कम जा रहा है, तो आपको पीसीओडी होने का चांसेस काफी ज्यादा है. To understand the abnormal thing, let us first of all understand what is normal. The center part which we are seeing is the uterus. This pear shaped organ is uterus. The side में जो दो long tubes दिखाई दे रही हैं, I'm moving my cursor over here. They are fallopian tubes. एंड जो पर्ली व्हाइट कलर की है ये ओवरी का आउटर अपीयरेंस है, और ये जो ब्लू कलर के जिसमें इसमें फॉलिकल जैसे दिख रहा है, ये इनर कट सेक्शन है ओवरी का. द लोअर पोर्शन, दिस इज कॉल्ड सर्विक्स, दिस इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम. इट इज द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, एंड द लोअर पोर्शन वेयर which opens outside near the urethra, below urethra, is vagina. So this is very important. So what are ovaries? What is the normal function of ovaries? The main function of ovary is to liberate an egg each month. Am I audible? Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, okay. Voice quality clear hai, Sachin sir? Absolutely clear, ma'am. There is no problem. Okay. So the main job of the ovaries is producing an egg every month. And if when you get married and you have intercourse, then that time this egg gets fertilized and you will get a baby. You will become pregnant. So this is very important to what is the role of ovary in a normal woman. What happens in PCOD? In PCOS, there are multiple eggs which are arranged in a peripherally, just periphery of the ovary. They are arranged in a fashion like a necklace pattern of a woman. नेकलेस पैटर्न में आपने देखा है मोतियों की माला जो गले में होती है, उस टाइप के पैटर्न में अगर ये अरेंज होता है और छोटे छोटे फॉलिकल्स अरेंज होते हैं इस पर. इंस्टेड ऑफ वन सिंगल फॉलिकल रप्चरिंग एवरी मंथ, देयर आर मल्टीपल फॉलिकल्स, और मल्टीपल चीजें होने की वजह, मल्टीपल फॉलिकल्स होने की वजह से nobody gets mature and everybody grows little bit in size. So the presence of these multiple cysts in the ovary, it is called polycystic ovary, multiple polycystic ovary syndrome. They are fluid-filled follicles and which do not respond properly to the hormonal stimuli. अब क्या आप
आप क्या अकेले हैं जिसको ये पीसीओएस है? जी नहीं, मोर देन 1 मिलियन केसेस पर ईयर इन इंडिया दे हैव पीसीओएस. Every second or third woman, third girl in a, if you count 10 girls, if you take 10 girls, then every second or third girl, she is having PCOS. And what happens? Treatment can help you, but this condition can't be cured. इसमें कोई परमानेंट क्योर नहीं होता है. ये परमानेंटली आपके बॉडी में रहता है, आपके बॉडी के इनसाइड होता है. इसको कंट्रोल किया जा सकता है, पर ट्रीटमेंट से पूरी तरह ये क्लियर नहीं हुआ जा सकता. क्योंकि जनरली लड़कियां आती है काफी डिप्रेस होती है, मैडम हमें पॉलिसिस्टिक ओवरी है, ये पूरी तरह ठीक हो जाना चाहिए. तो ये सबसे पहले हमारा आंसर यही होता है कि पहले आपको जो जो बताया जाए वो आप सब डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज वगैरह करें, आपका वेट कंट्रोल करें. ये कवर हो सकता है बट कंट्रोल पूरी तरह नहीं हो सकता है. ये उनको बताना बहुत जरूरी है. और काफी सारी चीजें, मतलब जैसे लैब टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड है, ये सबके जरिए से हम लोग इसको डायग्नोज करते हैं. और अगर आपने प्रॉपर वे में ध्यान नहीं दिया, समय रहते में चेते नहीं, तो ये कई सालों तक चल सकता है या लाइफ लॉन्ग रह सकता है. अब जैसे अनचाहे बाल, जो जिसको बोलेंगे हम लोग हिर्सुटिज्म जिसको बोल रहे हैं, ये लगभग 50 to 70% लड़कियों में पाए जाते हैं कि अनचाहे बाल उग रहे हैं, मूछें आ रही है, दाढ़ी आ रही है, इसको बोलते हैं हिर्सुटिज्म. लगभग 50% ऑफ द लड़कियां डायग्नोस ही नहीं होती है. जब तक उनको ये सिम्टम्स आते हैं तब तक फुल ब्लोन पीसीओएस होके आते हैं, और उसके बाद में दे गेट डायग्नोस्ड एज पीसीओएस. 5 to 10% ऑफ द वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज मतलब जब आपको बच्चे होने वाले, उस एज में लगभग 5 to 10% ऑफ द वुमेन दे आर गेटिंग डायग्नोस्ड. देन 30 to 75% वुमेन दे आर ओबेस और ओवरवेट. मैक्सिमम लड़कियां काफी वेट गेन या वेट बढ़ा के आती हैं. 50 to 70% they have insulin resistance. Insulin resistance means आपके बॉडी का जो इंसुलिन फंक्शन है, जो पैंक्रियाटिक फंक्शन है, वो प्रॉपरली वर्क नहीं होने की वजह से आपको डायबिटीज होने के चांसेस. तो आप इस भीड़ भरी इसमें क्या आप अकेले हैं? जी नहीं. जैसे मैंने अभी आपको बताया, एवरी सेकेंड और थर्ड गर्ल और वुमेन इन 10 in India is having PCOS. Means around 50 patients with PCOS every month. We report this. We report over 50 patients with PCOS every month in the age group of 14 to 28 years of age. It can occur in girls as young as 11 years old. But here is the difference. A girl gets mature, her whole body gets mature by the age of 18 years. Until that time, we cannot diagnose PCOS very clear cut. We can guess, we can have some doubt or have some suspicion that this girl may go for PCOS in future life, but up to the age of 18 years, we are not very sure that this girl is going to get PCOS in future. Till the age of 18, the hormonal axis of your body is not mature, so we cannot be 100% sure. But yes, after 18 years of age, one can say very well if the girl is having PCOD or not. Then what are the symptoms? There are a variety of symptoms. We have just now discussed, but this is along with the pictures, and so that it will give you a clear-cut idea regarding what are the symptoms. First of all, the girl is always worried. मेरे पीरियड नहीं आए, हर महीने में आना चाहिए. ये बड़ा एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है. Here let me make one thing very clear. आपके पीरियड हर महीने में आना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. हर लेडी की, हर लड़की की जो पीरियड आने की जो साइकिल होती है, वो हर एक की अलग अलग होती है. किसी का 21 डेज में आएगा, किसी का 28 डेज में आएगा, किसी का 35 डेज में आएगा, किसी का 2 months में आएगा. इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर जेनेटिक मेकअप. Your genetic makeup may be like your mother. Your mother might be menstruating a little bit late, और आपकी बुआ पे जा सकता है, तो मौसी, बुआ या फिर आपके मदर पे जा सकता है. तो इसमें इतना लेट आने से घबराने की कोई बात नहीं. बट यस, if it is coming after 3 months or 6 months, then it is a matter of worry. Then second important part is the oily skin or acne. It's very important for a girl. If they are having some oily skin or acne or having dandruff, then there is a very frequently they will get those acne, and then thereafter there will be scars. तो फेस आपका पूरा खराब हो जाएगा. अब जैसे यहाँ पे हिर्सुटिज्म भी दिखाई दे रहा है, जो एक्स्ट्रा हेयर दिख रहे हैं नेक और इसके पीछे में जो आपको एक्स्ट्रा हेयर दिख रहे हैं, ये भी सही नहीं है. ये देखिए मेल पैटर्न ऑफ, ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होने की वजह से इस तरह से बाल आपको आने लगे हैं. तो दिस इज नॉट अ गुड साइन अगेन, and before it occurs you should consult your doctor. Then there is alopecia, that is male pattern of baldness. Male pattern of baldness मतलब
जैसे बॉयज लोगों को या जेंट्स लोगों को यहाँ पे सेंटर में ये जो बाल्डनेस होता है, ये यहाँ के बाल पहले उड़ते होंगे, ये फीमेल में आना शुरू होते हैं बिकॉज ऑफ अगेन एक्सेस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। देन देयर इज सेंट्रल ओबेसिटी। व्हाट इज सेंट्रल ओबेसिटी? सेंट्रल ओबेसिटी मींस सिर्फ आपका पेट बढ़ रहा है, बाकी आप बॉडी में लीन थीन हो। आप बहुत सारी लड़कियां इस कंप्लेंट के साथ हमारे पास आती हैं कि मैडम सिर्फ पेट ही निकलता जा रहा है, बाकी हाथ पैर तो मेरे काफी दुबले हैं, बट दिस इज कॉल्ड सेंट्रल ओबेसिटी। देन देयर इज अकैंथोसिस निग्रिकेंस। दिस इज द, ये यहाँ पे इन्होंने ब्लैक बहुत प्रॉपरली नहीं दिखाई दे रहा, बट फिर भी स्टिल दीज आर द मार्क्स व्हिच आर सीन। अकैंथोसिस निग्रिकेंस एक ब्लैकिश एरिया आपके नेप ऑफ द नेक यानी गर्दन के पीछे बगल में ये इस प्रकार से डेवलप होता है। दिस इज अगेन अ साइन ऑफ पीसीओडी और इंसुलिन रेजिस्टेंस that you might get in future diabetes. That is the sign of acanthosis nigricans is the sign of insulin resistance. Then coming to diagnosis, how we diagnose? First of all, the history of the patient is very much suggestive of that she is having irregular or absent period, or there are androgen signs symptoms of androgen excess like hirsutism, oligomenorrhea, then acne. These are the signs symptoms of or alopecia. That indicates that the patient is having excess of male hormone, that is testosterone or androgen. And then after examination of all these signs symptoms, proper history taking, we go ahead with the ultrasound report, and if the patient is more than 18 years of age, during that period, if we get this kind of appearance on sonography, that is the multiple cysts arranged peripherally in a ovary, these are called polycystic ovaries. What are the causes? What are the causes for polycystic ovarian syndrome? Still, it is not very much understood, but it may involve a combination of genetic and environmental factors. And what are the other causes? अगर genetic और environmental के साथ साथ में, it is not necessary that every time the genes will manifest. Or what are the other environmental causes? The anxiety and stress that can cause high levels of steroids, cortisol levels in our body, as well as high insulin levels, and that trigger the ovaries to produce more testosterone. Then it causes various symptoms and problems. तो आपको एंजाइटी और स्ट्रेस भी होने से आपको पीसीओडी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसीलिए आपको पहले से ही आपकी तरफ अच्छे से ध्यान देना चाहिए। प्रॉपर वे में आपके एंजाइटी स्ट्रेस को मैनेज करने की उपाय योजना आपके पास पहले से होनी चाहिए। देन द एग्जैक्ट कॉज तो अभी तक हमें पता नहीं चला है। तो क्या होता है, कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग जो लड़कियां होती है, कुछ जेनेटिकली प्रीडिस्पोज लड़कियां, उनको पीसीओडी हो रहा है, कुछ को नहीं हो रहा है। तो व्हाई इट इज सो? It because it's a combination of two, genetics plus sedentary lifestyle. आप बैठे हैं, आराम से खा रहे हैं, हाई कैलोरिक फूड ले रहे हैं, बिल्कुल हलचल नहीं हो रही है, कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही है, तो आपके बॉडी में हार्मोन्स के चेंजेस होने वाले हैं। अगर आपके हार्मोन के चेंजेस अगर आपके बॉडी में सही मात्रा में नहीं हुए, बैलेंस बराबर नहीं रहा, तो आप पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज के सिंड्रोम के शिकार हो सकते हैं। So along with genetics, the other factors like stress, tension, sedentary lifestyle, uh, eating junk food, it all changes your hormonal milieu inside, and that can lead to PCOD. In these women, there are high levels of insulin and androgen in blood, which is responsible for causing PCOS. Like from genetics, we have seen there can be increased high androgen level or high male hormone that can lead to acne, hirsutism, and alopecia, and menstrual disturbances. And by your lifestyle, you can have again high insulin level that leads to metabolic syndrome, that is hypertension, diabetes, and obesity, that to central obesity and weight gain in future. It's a why we are saying it's some ladies they are having they are genetically predisposed and they are having PCOS, and some ladies even though they are genetically predisposed they don't have PCOD. So it's a lifestyle related disease which is rising in India, especially among young girls. Why? Because of this, they are stressed all the time. 10th आ रहा, 12th आ रहा, पढ़ना है, बैठे रहना है, अननेसेसरी बातों का कंटिन्यूशन में मोबाइल पे रहते हैं, पर्सनल इंटरपर्सनल रिलेशंस बराबर नहीं रहते हैं, हर चीज का स्ट्रेस लेते हैं, बाहर का खेलना कूदना टोटली बंद हो जाता है, कोई गेम्स इंडोर या आउटडोर नहीं करते हैं, उसकी वजह से स्ट्रेस और बिल्डअप होता है, और एक्सेसिव ईटिंग ऑफ जंक फूड। आप देखते हैं आए दिन हर कॉर्नर में हमारे यहाँ पे अलग अलग नाम से ये लगे हुए हैं,
कहाँ पिज्जा मिल रहा है, कहाँ सैंडविचेस मिल रहे हैं। और सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ पे यंगस्टर्स की होती है, स्पेशली गर्ल्स की। एंड दिस गर्ल्स दे ऑल ईट दैट fries and everything and pizzas and sandwiches that is made up of the all this maida, white flour, and they then they drink those cold drinks and juices and shakes with excess of sugar. That again leads to uh, increase of weight, increase of their weight and junk foods. And then there is lack of exercise, that is weight gain and obesity. Because of lack of exercise, they don't exercise at all. Just lying down and watching TV, lying down and eating, lying down and operating mobile continuously. That leads to lack of exercise, and then there is weight gain and obesity in these patients. How our lifestyle influences this stress, we have seen already. But excessive eating of carbohydrates and fat-rich food that leads to glucose intolerance or excessive glucose in the body, and this glucose is not properly channelized into energy because you are lying down, you are not doing exercise. This glucose is going to get stored in your abdominal fat. Then there is central obesity and stress and sedentary lifestyle. आराम से बैठे रहने से और टेंशन देने से भी आपका वेट बढ़ेगा और central obesity होगी. There is increased insulin and androgen levels, and that leads to irregular menstrual periods, again acne, hirsutism, or alopecia. What are the complications of PCOS? Let us see what are the complications. We have three phases in our life. First of all, you girls, like who are not married till now, that is complications during adolescence, which are very important. Then there are complications during pregnancy when you get married and you become pregnant, and complications at the time of your mother's age, like long-term complications, one can say. What are the complications during adolescence? Complications during adolescence is you will have irregular periods, you will have amenorrhea, that is आपका पीरियड ही नहीं आ रहा कई कई दिन तक या 6-8 महीने तक पीरियड नहीं आ रहा. ओलिगोमेनोरिया यानी आपका पीरियड काफी कम जा रहा है, आपके फेस पे काफी एक्ने या पिंपल्स आ रहे हैं, ऑयली स्किन हो रही है, डैंड्रफ हो रहा है, हिर्सुटिज्म हो रहा है यानी अनचाहे बाल आ रहे हैं. तो ये तो बड़ी परेशानी की बात हुई ना आप सबके लिए, क्योंकि क्या है इस एज में आप चाहते हैं कि आप सबसे अच्छे दिखें, और उसी टाइम पे अगर आपके साथ में और मोटापा भी है साथ में, आप औरों के कंपैरिजन में काफी हेल्दी या काफी मोटे दिखाई दे रहे हैं. हु विल लाइक दिस? किसी को पसंद आएगा? एवरीबडी वांट्स अ गुड फिगर, अ प्रॉपर क्लीन फेस, स्पॉटलेस फेस यू कैन से, है ना. कोई प्रकार का दाग धब्बा आपको तो अच्छा नहीं लगेगा आपके फेस पे, तो आप छोटे भी दिखना चाहोगे. आप मोटापे की वजह से और इन सब बातों की वजह से आपका एज आपकी उम्र के हिसाब से 10 साल ज्यादा दिखना शुरू हो जाएगा. तो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग एडोलेसेंस दैट लोअर्स योर कॉन्फिडेंस. आपको बाहर जाने की, दुनिया को फेस करने की आपकी जो इच्छा है, इच्छा शक्ति है, वो काफी कम हो जाएगी. अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, अगर आपका कॉन्फिडेंस कम होता है तो आपका परफॉर्मेंस कम होगा. आपका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, जो आप अचीव करना चाहते हैं, वो आप कर नहीं पाएंगे. So it's very important to have good figure, to good looks and proper skin, and these are the complications during adolescence. What are the complications during pregnancy? During pregnancy there can be a risk of miscarriage प्रॉपर वे में अगर हार्मोनल मिल्यू इनसाइड में अगर अच्छा नहीं रहेगा. आप एग्जांपल लीजिए, आप एक आधा पेड़ लगाते हैं, पौधा लगाते हैं, पौधा लगाने के बाद में उसको खत पानी अगर बराबर से देंगे तो ही तो उसकी ग्रोथ होगी ना. अगर आपका अंदर का मिल्यू अच्छा नहीं रहेगा, आपका हार्मोनल बैलेंस ठीक नहीं रहेगा, तो आपको हाई रिस्क ऑफ एबॉर्शन या मिसकैरेज का हाई रिस्क रहेगा. इन फ्यूचर इफ यू आर हैविंग इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी आपके बॉडी में जो इंसुलिन सीक्रेट होता है वो प्रॉपरली सीक्रेट नहीं हो पाता है, एक्सेस में सीक्रेट होता है. ऐसे टाइम पे आपको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज हो सकता है, दैट इज कॉल्ड जेस्टेशनल डायबिटीज. देन देयर आर फीटल कॉम्प्लिकेशंस. अगर इस तरह से आपके बॉडी में जेस्टेशनल डायबिटीज या प्री डायबिटिक स्टेट है तो आपके बच्चे में कॉम्प्लिकेशंस आने का डर रहता है. जल्दी एबॉर्शन होना, जल्दी डिलीवरी होना, और बच्चे में कंजेनिटल मालफॉर्मेशन एंड एब्नॉर्मल बच्चे होना भी काफी हद तक स्वाभाविक है. अब लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस में चलते हैं. जैसे आप पीसीओडी, आप अभी माँ भी बन गए, आप एडोलेसेंस से भी गुजर गए, आप माँ भी बन गए. अब मुझे क्या जरूरत है पीसीओडी ट्रीट करने की? ये एक नेचुरल टेंडेंसी होती है. तो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस क्या है? लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन से आपको डायबिटीज हो सकता है इन फ्यूचर, आपको हार्ट डिसीज हो सकता है, और 1 to 2% केसेस में आपको बच्चादानी के अंदर की जो लाइनिंग होती है दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम, जो मैंने सबसे पहले के डायग्राम में आपको बताई थी, आपको एंडोमेट्रियल कैंसर होने की संभावना हो सकती है. सो
In each and every phase of your life, this PCOD, it affects you. That's why treatment of PCOD is must. There are certain myths and facts. Myth number 1, for PCOD diagnosis, you must have polycystic ovary. अब क्या होता है, कई बार पॉलीसिस्टिक ओवरी होती है, पर हर बार पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होना जरूरी नहीं है. लगभग 25% of the female population they have polycystic ovary, yet only half of them are diagnosed with PCOS symptoms. ये ऐसा क्यों है, इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं. बिकॉज जेनेटिकली प्रीडिस्पोज होना ही जरूरी नहीं है. जेनेटिकली प्रीडिस्पोज होने के साथ में अगर आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी उसके साथ में आप ये कर रहे हो, मिक्स हो रहे हैं, तो देन यू माइट डेवलप PCOD, दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. And then myth number 2, you will never have children. Wrong. PCOD women, if they control their symptoms, if they control their hormonal milieu inside, then they can become pregnant naturally, and sometimes you may need our help to become pregnant. Then myth number 3, all PCOD women, they are fat or obese. No. 50 to 7, yes, obesity is a part of PCOD. Around 50 to 70% women, they are obese, but there are lean PCOD patients also. Many women with PCOS do have an excess weight problem, but there are also quite a few who don't have this kind of problem. These are called lean PCOS. These lean PCOS, they are more difficult to treat. फिर PCOD comes with the eating disorder. कॉन्स्टेंटली आपको खाने की इच्छा हो रही है, जैसे मैंने पहले भी बताया, आपके माइंड में आपकी निगेटिव बॉडी इमेज होती है. आप चाहते हो कि आप दुबले पतले स्लिम से दिखे, आप थके नहीं. है आपका वेट बढ़ता रहता है, इसकी वजह से आपको तकलीफ होती है. देन दैट लीड्स टू डिप्रेशन ऑल्सो, एंड देयर आर सर्टेन मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स, जैसे हम लोगों ने पहले भी बात की, पीरियड कम जाना, ज़्यादा जाना, ये टाइप का आपको प्रॉब्लम आ सकता है. लेट आना या काफ़ी लेट आना, या फिर काफ़ी जल्दी भी आना. कभी कभी किसी पेशेंट का हार्मोनल मिल्यू प्रॉपर नहीं रहने से ऐसा होता है. हेलो हेलो संदेश. Yes, ma'am. You are audible. Yeah. Okay, okay. Why my video got off in between? Yes, yes. Sure. So what is the management of PCOD? PCOD का सबसे पहला मैनेजमेंट है, आपका डाइट कंट्रोल होना चाहिए, आपने एक्सरसाइज करना चाहिए, एंड देन देयर इज अ रोल ऑफ मेडिसिन. लेट अस सी वन बाय वन. डाइट कैसा होना चाहिए. सर्टेन, सबसे पहले हम लोग ये बात करना चाहेंगे कि क्या नहीं खाना है, क्या खाने से बजाय क्या नहीं खाना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जो चीज, जो भी डाइट आपका रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स है, लाइक राइस है, पोटैटो है, yolk of the egg, then shellfishes, organ meats like kidney, liver and brain, and red meats like mutton, pork and beef, etc. ये आपको नहीं खाना है. एक सिंपल से लैंग्वेज में हम लोग जनरली इतना सब हम लोग खाएंगे ये ज़रूरी नहीं है, बट हमारे खाने में तला हुआ नहीं होना चाहिए, तली हुई चीज़ें कम से कम होना चाहिए, मैदा और बेसन की चीज़ें कम से कम होनी चाहिए. जिससे क्या होता है, मैदा जो आप खाते हैं, जो व्हाइट फ्लोर आप खाते हो, जो मार्केट में ब्रेड और बिस्किट्स और पिज्ज़ा के तौर पे आपको जो मिलता है, इट्स नॉट इजी फॉर डाइजेशन. इट गेट स्टिक टू योर इंटेस्टाइन और वो काफ़ी दिन तक निकलता नहीं है, एंड दैट लीड्स टू सेंट्रल ओबेसिटी इन फ्यूचर. देन जो आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हो, उसमें क्या होता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के साथ में आपकी इंस्टेंट राइज ऑफ शुगर होती है. तो उससे क्या लगता है आपको, क्या टेम्पररी तो आपको लगता है कि खाने के बाद, पीने के बाद में एकदम अच्छा लग रहा है. दैट गिव्स इंस्टेंट हाई टू योर ब्रेन, बिकॉज इंस्टेंट शुगर मिलता है ब्रेन को. बट दैट इज अगेन बैड फॉर योर हेल्थ, बिकॉज आपकी जो इंसुलिन लेवल है, आपकी जो शुगर हाई होने से इंसुलिन का डिस्टर्बेंस है, वो आपके बॉडी में होना शुरू होता है. तो आपको तला हुआ नहीं खाना है, आपको मैदा और बेसन नहीं खाना है, फ्राइड चिलीज थिंग्स तो नहीं खाना है, जैसे मैंने पहले भी बताया. और ये पिज्ज़ा, बर्गर, इन सब से आपको अगर आप हेल्दी ज़्यादा है, वंस इन अ वाइल इट्स ओके, बट ये वंस इन अ वाइल बहुत फ्रिक्वेंट होता है, क्योंकि आज इसका बर्थडे है, कल उसका बर्थडे है. खैर अभी तो कोरोना चल रहा है, तो कोरोना की वजह से काफ़ी कम हो गया है, बट बाहर की जगह पे भी घर पे बनने लग गया है, वो भी एक रिस्की बात होगी. आए दिन हम लोग देखते हैं, एवरीबडी इज कुकिंग something or other, looking at the internet sites, and we are eating like पहले से हम लोग ज़्यादा खाने लग गए हैं. So these things should be avoided, and proper balanced diet should be there. So what are the foods to be recommended? The diet, it should be rich in proteins and vitamins is must. Egg whites you can take, fishes like pomfrets you can take,
and lean parts of chicken should be taken. एक स्वामी विवेकानंद जी ने बड़ा अच्छा कहा है, एनीथिंग इन मॉडरेशन इज मस्ट, एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। तो यही बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आपको खाने से मना नहीं किया गया, बट यू शुड ऑब्जर्व योर पोर्शन साइज। एक आप केक खाना चाहते हो, आपके फ्रेंड का बर्थडे है, तो आप केक खाना चाहते हो, तो आपने बस बोल दिया नहीं 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 नहीं, मेरे डॉक्टर साहब ने बोला है कि कुछ नहीं खाना है, मीठा बिल्कुल नहीं खाना है, आपको मीठा नहीं खाना है, आपको कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना है, आपके डॉक्टर ने बोल दिया आपको पिज्जा नहीं खाना है, और आप अभी क्या हो रहा है ना, आप कई दिनों से कंट्रोल किए जा रहे हो, बहुत दिन से कंट्रोल किए जा रहे हो। कंट्रोल करते करते क्या होता है, एक दिन आपका वो जो आपने प्रॉमिस किया है खुद से वो टूट जाएगा। इट्स बेटर टू हैव इन अ स्मॉलर साइज। लाइक आप एक बड़ा पिज्जा का पीस खाने वाले हो या एक पूरा पीस खाने वाले हो, तो आप उसका 1/4 खाइए और उसी टाइम पे इंस्टेंट फूड को ग्रेटिफाई कीजिए, इंस्टेंट फूड को सेटिस्फाई कीजिए कि आपने वो खाया है, और उसको खाते समय आपको धीरे धीरे चबा चबा के खाना है। यू शुड टेक टेस्ट ऑफ ईच पोर्शन, व्हाटएवर ईच मॉर्सल व्हाटएवर यू आर ईटिंग। उससे क्या होगा कि आपके ब्रेन को सिग्नल प्रॉपर जाएगा। जब भी हम लोग फास्ट खाते हैं तो खाते समय हम लोगों को ध्यान में नहीं आता कि हम लोग कितना खा रहे हैं। ब्रेन का सिग्नल आपके पहुंचने के बाद में, खाना आप जैसे खाना खाने बैठे हो, खाने के बाद में आपका ब्रेन का सिग्नल आपको 15 से 20 मिनट के बाद आता है, तो वो 15 से 20 मिनट का जो टाइम है उस टाइम पे आप एक्सेस खा चुके रहते हैं। तो आपको जब भी इस टाइप की कुछ चीजें खानी है तो आपको धीरे धीरे सिप सिप से पीना है, या फिर थोड़ा थोड़ा पोर्शन खाना है, जिससे आपके ब्रेन को, सटाइटी सेंटर को एक सिग्नल मिले कि आप बराबर से खा रहे हैं। दिस इज अ फूड पिरामिड फॉर यू पीपल। क्या ज्यादा खाना है, क्या कम खाना है, इसके बारे में पूरा दिया है। जैसे टॉप मोस्ट पोर्शन जो दिया है, आप देख रहे हैं यहाँ पे पिज्जा, बर्गर, केक, मैगी, ये सब दिया है। तो ये फैटी फूड्स और स्वीट्स और फास्ट फूड, फैट्स और ऑयल और शुगर आपको एकदम मिनिमल अमाउंट में लेना है। अगर आपका बॉडी वेट काफी ज्यादा है तो आप, अगर पॉसिबल है तो अपने टोटली बंद करना चाहिए। इफ यू आर फोकस्ड टुवर्ड्स रिड्यूसिंग योर वेट, देन यू शुड स्टॉप इट ईटिंग। Then have enough of milk and meat products and meat and meat products. This is also not true. इनफ नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि जितना आप ले रहे हो उसमें से आप 50% कम करना चाहिए, क्योंकि दूध से भी काफी वेट बढ़ता है, एंड दूध शुड भी विदाउट मलाई होना चाहिए। Then eat lots of fruits and vegetables. Yes, this is true. You should have plenty of salads and fruits and seasonal, all seasonal fruits and vegetables and salads should be in your day-to-day plate. And then the last portion is cereals, pulses and millets. They should be plenty. So how should be your this diet? The total calories per day should be 1800 to 2000 calories should be there per day. And this is the total plan is given over here, PCOS diet plan, wherein they have included fat, calcium, sodium, carbohydrate, proteins and iron in your diet. And they have given very specific times, like fat they are asking us to eat at 9 a.m. Then at 11 a.m. they are asking us to take sprouts, then fruits, vegetables, everything they have given us a proper chart. One can follow this chart if the person is very obese. Otherwise, a routine diet, a specific square diet should be taken, जिसमें दाल, भात, चपाती और आपका हरी सब्जियां, सैलेड्स और दही होता है, वो आपको रेगुलर में लेना चाहिए। पीसीओडी में स्पेसिफिकली मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन डी और विटामिन B12 और फोलेट की काफ़ी डेफिशिएंसी होती है। तो द फूड विच आर रिच इन मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन D, B12 एंड फोलेट, दे शुड बी टेकन। दे आर द ग्रीन लीफी vegetables, the sprouts, the fruits and the salads. They are rich in all these deficient vitamins. Then there are two types of diet. The diets that may help the people with PCOS, there are two types of diet. One is a low glycemic index diet and another one is an anti-inflammatory diet. Let us discuss it one by one. The first one is a low glycemic diet. This the body digests food with a low glycemic index more slowly, meaning they do not cause insulin levels to rise as much as or quickly as other foods, such as some carbohydrate foods in a low glycemic diet. It includes the whole grains, legumes, nuts, seeds, fruits, starchy vegetables and other unopposed low carbohydrate foods. तो ये जो आप लो ग्लाइसेमिक डाइट वाला जो फूड है, ये मैक्सिमम अमाउंट पे आपको लेना है। इससे क्या होगा कि आप जो भी लेते हैं, इसका जो शुगर है वो धीरे धीरे बढ़ेगा और उससे आपके इंसुलिन लेवल डिस्टर्ब नहीं होंगे और आपको आगे चल के ओबेसिटी और डायबिटीज होने की रिस्क कम होगी।
what is glycemic index? It's a measure of how quickly a food causes our blood sugar levels to rise. अब जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स लेते हो या आप केक और आइसक्रीम लेते हो तो आपकी शुगर लेवल फास्ट बढ़ती है. फूड्स विद हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स आर क्विकली डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब. जैसे आपने देखा होगा, आपने समोसा खाया, आपने लाइक कोल्ड ड्रिंक्स पिया, तो आपको इमीडिएटली आपको ऐसे पेट भर गया, अच्छा लग रहा है, बिकॉज दीज आर प्रोसेस्ड फूड. और आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन भी मिलेगा और इंस्टेंट आपके ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि यार बहुत अच्छा खाना खाया और अच्छा लग रहा है, और आपकी शुगर लेवल भी तुरंत नॉर्मल हो जाएगी जब आपको भूख लगी है. और वहीं आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाते हैं तो ये प्रॉपरली डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब रहता है, स्लो रेट रहता है. लाइक आपने दाल चावल खाया, समोसे की जगह पे आप दाल चावल खा रहे हैं, तो आपका पेट काफी देर तक भरा हुआ फील करेंगे आप, और आपको भूख भी ग्रेजुअल में धीरे धीरे लगेगी. जैसे आप फास्ट फूड खाते हो तो आपको अभी 1 घंटे पहले आपने फास्ट फूड खाया, 1 घंटे के बाद में आपको फिर से भूख लग जाती है. वैसे ही अगर आप प्रॉपर खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद में जो अपना स्क्वायर डाइट होता है, हम लोग घर का बना खाना खाते हैं, तो हम लोगों को 4 से 5 घंटे भूख नहीं लगती, बिकॉज दैट फूड इज लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड विच वी ईट रूटीनली. This is the glycemic index. High glycemic index, the sugar levels are pretty high within few hours, within first 1 or 2 hours, and then low glycemic में आपके gradual way में build up हो रही है और fall हो रही है. Then there are different types of grains or starches, vegetables, foods, dairy products, and proteins, wherein they had given the glycemic index of each and every product. So you can take a snap of this and you can circulate among yourself, or you can take a picture of this and can have on your almirah or on your fridge, so that whenever you open your fridge and want to eat something, you can go ahead and see what is the glycemic index of the food which you are eating. Like the low glycemic index food, if it is less than 50, value is less than 55, it's good. Medium glycemic index is 56 to 69, and high glycemic index is 70 plus. So these are the kind of foods here given. हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का आप यहाँ पे सैंपल दिख रहा है आपको, यहाँ पे ड्रिंक्स है, ये आपको सारे स्नैक्स दिखाई दे रहे हैं. मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के भी स्नैक्स आपको काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रहे हैं. वेयर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स दे आर कंटेनिंग फ्रूट्स एंड salads. So it's very important to know this. It's a very important chart which you should have in your kitchen. This is again a fast food का glycemic index chart, wherein the snacks are given. The glycemic index of pizza is 33, then chocolate bar is 49. बड़े easily हम लोग एक chocolate bar खा जाते हैं ना, कई बार खा लेते हैं. केक कितना फ्रिक्वेंट खाते हैं, पॉपकॉर्न कितना फ्रिक्वेंट खाते हैं. एनर्जी बार तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई एनर्जी आने के लिए एनर्जी बार नहीं खाया अगर, या आपने डोनट नहीं खाया तो आपको एनर्जी नहीं आने वाली. Then these are jelly beans, everything is given over here. These are the high glycemic index food and they should be avoided. The second type of diet is an anti-inflammatory diet. The anti-inflammatory foods such as berries, fatty fish, leafy greens, and extra virgin olive oil, they may reduce inflammation-related symptoms such as fatigue. जो आप थकान महसूस करते हो वो काफी हद तक कम हो सकती है because of this anti-inflammatory diet. And the example of this anti-inflammatory diet are Mediterranean diet and the DASH diet, which include fresh fruits and vegetables, fish, whole grains, and fats that are good for the heart. Inflammation appears to play a very important role in cardiovascular diseases, and this plant-based diet is very healthy for your heart. That's why you should have this anti-inflammatory diet, because cardiovascular illness is one of the symptomatology of PCOD in future. So what are the anti-inflammatory foods? These are the apples, avocados, the blueberries, cantaloupes, oranges, papayas, all types of fruits, and cauliflower, cabbage, and cucumber. These are the anti-inflammatory diet. How they help? How the anti-inflammatory diet and lifestyle helps you? It helps you to eliminate the sources of gluten, avoid the white or refined sugar. All these are the advantages, and plus they are antioxidant as well. I wish you should have you should click a photograph of this also and stick it in your kitchen.
Then there are certain supplements for PCOD. Like they say you should add omega-3 fatty acid in your diet. It improves menstrual cycle and lowers the inflammation. Then they are saying about magnesium, then cinnamon, then L-acetylcysteine. These all supplements we doctor as a patient whenever you visit your gynecologist is going to prescribe you. Then coming to second important point, that is exercise. How much exercise should I do? They say 150 minutes per week, ideally 30 minutes per day is recommended for PCOD girl. And walking, and the kind of exercise which we need to do is walking, swimming, or weightlifting. Yes, these are the exercises, but yes, you can go ahead with running, you can play badminton, you can just do cycling. All these all these exercises are good for you. Anything which doesn't require money, you should start doing. Many कई सारी लड़कियां आती हैं हमारे पास में बोलती है मैडम हम लोग जिम ज्वाइन कर लें क्या? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई टू पे फॉर ऑल दिस थिंग्स. ये तो लाइफ लॉन्ग का प्रॉब्लम है. आपके साथ ये पूरे जिंदगी भर आपके साथ रहने वाला है, तो आप लाइफ लॉन्ग इसके ऊपर जिम के ऊपर एक्सपेंसेस नहीं कर सकते. यू शुड हैव सम और अदर अल्टरनेटिव विथ यू. लाइक वॉकिंग करने में आपको स्पेंड नहीं करना है. यस, स्विमिंग में करना है क्योंकि स्विमिंग पूल, बट स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, इट्स ओके. बट जिमिंग करने की जगह पे अगर आप अभी यंग एज में आप इतना जिमिंग करने की जगह पे आप वॉकिंग करते, साइकिलिंग करते, या ब्रिस्क वॉकिंग करते, या वेट लिफ्टिंग करते, या घर पे कोई प्रकार की एक्सरसाइज आप स्टार्ट करते हो, तो इट इज नथिंग लाइक दैट. So it's very important, and 150 minutes per week is ideal for a girl who is having average weight. But for a obese woman, for a obese girl, the exercise should be more. Like you can say like 30 minutes की जगह पे आप 45 मिनट्स या 1 आवर तक एक्सरसाइज डेली आपने करना चाहिए. और कई सारी लड़कियां आती हैं हमारे पास में, पेशेंट्स वापस आते हैं, मैडम कुछ भी कर लो वेट कम ही नहीं हो रहा, उल्टा बढ़ता ही जा रहा है. तो आई हैव अ सिंपल सेंटेंस फॉर देम. अगर आपको एग्जाम में मार्क्स कम पड़ रहे हैं तो आपने क्या करना चाहिए? तो ज़्यादा पढ़ाई करना चाहिए, तो आप ज़्यादा एक्सरसाइज करें, डाइट कंट्रोल करें. डाइट कंट्रोल नहीं होता है मैडम चाहे जो हो जाए, बट वेट कम नहीं हो रहा है. वेट भी आपका, डाइट भी आप कंट्रोल नहीं कर रहे, आप एक्सरसाइज भी कम कर रहे हो, तो फिर इट्स अ सॉर्ट ऑफ बैंक बैलेंस. आप बैंक में डालते जा रहे हो, निकाल कुछ भी नहीं रहे हो, तो बढ़ने वाला तो है ना. आपकी सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ेगी, सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ेगी तो आपके सिम्टोमेटोलॉजी वैसे ही रहेंगी. आप भले कितने भी दिन की ट्रीटमेंट ले लो, बट ट्रीटमेंट से तो फायदा उतना होने वाला नहीं है जितना आपकी एक्सरसाइज से होना है. The first and foremost important thing in PCOD is lifestyle modification and lifestyle modification. तो एक्सरसाइज का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, डाइट कंट्रोल का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है. मेडिसिन दे आर ओनली फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. They should be given, and below the age of 18 years we generally tend not to give hormonal pills to our patients. They, what is what is the role of exercise in PCOD? क्यों करना चाहिए? So because it helps to reduce the insulin resistance and improves your weight loss. Moderate exercise like the brisk walking, jogging, cycling, or swimming, they are all good for PCOS, and this type of exercise increases your body's sensitivity to insulin, which will reduce your risk of cardiovascular disease and type 2 diabetes, which may happen to you in later of life. So it's very important. Just now we have said there is improvement in insulin and hormonal responses to exercise, and thereby it improves your reproductive function. Like जब आप माँ बनने वाले हो, जो कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं इन प्रेगनेंसी, लाइक रिपीटेड एबॉर्शन होना, या प्रेगनेंसी नहीं रहने से शुरुआत होती है, रिपीटेड एबॉर्शंस होना, जल्दी डिलीवरी होना, या आपको डायबिटीज डेवलप होना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आपके कम हो सकते हैं इफ यू डू प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइज ड्यूरिंग before pregnancy and achieve a proper pre-pregnancy weight. Yes, there is a role of dance or aerobic exercises and resistance-based exercises. You should have like-minded people to along with you. कोई आपकी जो फ्रेंड है जो जिसको पीसीओडी है या जिसको ओबेसिटी है, ऐसे लोगों को आपको इंक्लूड करना चाहिए. ऐसे लोगों के साथ में आपको दोस्ती रखना चाहिए जो आपके साथ में उस चीज में आपके साथ सहभागी हो. ऐसा नहीं कि कोई दुबली पतली या ऐसी फिगर वाली लड़की के साथ में आप घूम रहे हो, वो तो एक्सरसाइज करने से रहे, तो आप भी एक्सरसाइज करने से रहे. इट्स बेटर टू हैव फ्रेंड्स, such friends with you who have a similar motto along with you. Then there is long term lifestyle and exercise maintenance.
जरूरी है, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग का प्रॉब्लम है। पीसीओडी इज नॉट अ वन डे प्रॉब्लम। एक दिन के प्रॉब्लम से आपके सारे प्रॉब्लम, एक दिन के एक्सरसाइज से या कुछ दिन के एक्सरसाइज से आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। लाइफ लॉन्ग आपको ये करते रहना है, लाइफ लॉन्ग आपको शेप में रहना है, आपके ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल में रखना है, आपके ओबेसिटी को कंट्रोल में रखना है, तो एक्सरसाइज विल बी लाइफ लॉन्ग। Coming to treatment, what the doctors are going to do when you want to go, you have to visit the doctor. First of all, doctor is going to give you some certain hormonal pills to regularize your periods. अगर आप जिस कंप्लेंट के लिए जा रहे हो उस कंप्लेंट की आपको मेडिसिन दी जाएगी, डिपेंडिंग ऑन योर suitability for that particular medicine. Then there is metformin, which is a diabetic medicine to prevent diabetes in you people. Then there are statins. अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, आप काफ़ी मोटे हो, आपको अगर हार्ट डिसीज होने की रिस्क लग रही है डॉक्टर को, तो आपको स्टैटिन्स दी जाएंगी। हॉर्मोन्स दिए जाएंगे अगर आप प्रेगनेंसी के लिए जा रहे हो, और अगर आप हेयर ग्रोथ के लिए जा रहे हो तो आपके जो हेयर ट्रीटमेंट है उसके लिए आपको स्किन स्पेशलिस्ट के पास रेफर किया जाएगा। So gynecologists may prescribe medicine to regularize your menstrual cycle, that is oral contraceptive pills. Then to lower the insulin and androgen level, metformin or inositol. To lower your blood glucose, they will ask you to do diet control. To convert your body weight, diet and exercise. To control your body weight, they will ask you to go for diet and exercise. And for symptoms like acne or hirsutism or alopecia, they might give you some kind of medicine which is called as cyproterol acetate. So depending on the symptoms, there are certain tests and treatment. Like if you are having polycystic ovary you came with a diagnosis of polycystic ovary, doctor is going to do a ultrasound scan for you, and if there are many number of follicles inside the ovary, then they will diagnose you as a polycystic ovarian syndrome. And further confirmation will be by pelvic laparoscopy, but unless and until needed, we don't do in young unmarried girls. We do not do this laparoscopy, only sonography is sufficient. And treatment, depending on you went before marriage or after marriage, the treatment will depend on. Yeah, but the basic treatment, especially in obese women, is weight reduction and diet control and exercise. Even in lean PCOS, there is a role of exercise because that will help her to maintain her hormones in the body. Then there are, if you go to the doctor for post marriage, you are going and you are not having an issue or you are infertile, then that time your doctor will prescribe you fertility drug. Then if you are going to a doctor with the complaint of irregular period, कि आपके पीरियड बराबर नहीं आ रहे हैं, 2-2, 3-3 महीने नहीं आ रहे हैं, आपको काफ़ी कम ब्लीडिंग हो रहा है, या काफ़ी दिन तक ब्लीडिंग होता है, थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग हो रहा है और काफ़ी दिन तक हो रहा है, या फिर आपको बहुत हेवी पीरियड जा रहा है, इस टाइप की कोई भी कंप्लेंट आप लेके जाते हैं, तो अगेन देयर इज a test for ultrasonography. If needed, we do investigations like from your आपका blood sample लेते हैं. And again, depending on your wish, whether you want pregnancy or you do not want pregnancy, we prescribe you certain pills or certain medicine. If you go to a doctor for some excessive hair on your body, like facial or body hair, आपको hirsutism है, आप पिंपल से एक्ने के लिए जा रहे हो, या आपको मेल पैटर्न ऑफ एलोपेशिया यानी सामने के साइड में आपको जेंट्स के जैसा ऐसे मराठी में ज्याला म्हणतो आपण टक्कल पडत आहे, अशा वेळेस इस दिस टाइम पे वी नीड टू डू सर्टन टेस्ट लाइक एंड्रोजन टेस्ट और टेस्टोस्टेरोन टेस्ट एंड along with your insulin levels. 12-hour fasting insulin we try to do, and then again we give you certain medicines pills which contain cyproterol acetate or certain insulin sensitizing medications like glycipase or metformin. कई बार क्या होता है, हम लोग आपको इस टाइप की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं और आप लोग केमिस्ट के पास जाते हैं, वहाँ पे आपको केमिस्ट बोलता है कि आपको डायबिटीज है, आपको ये मेटफॉर्मिन दिया गया, बहुत कंफ्यूजन सा हो जाता है। तो कई पेशेंट्स वहाँ से मेटफॉर्मिन ना लेके घर चले जाते हैं और जितना ऊपर का मतलब जो सिप्रेटोरॉल एसिटेट भी है वो लेके खा के सेकेंड थर्ड साइकिल में आते हैं। दे डोंट गेट रिस्पॉन्स प्रॉपरली फॉर दैट इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला पोर्शन के लिए। So you should clearly ask your doctor, you should come back to your doctor and ask again. Otherwise, what is my practice is we properly tell our patients this medicine is for this purpose, this medicine is for this purpose, so that patients don't have any confusion while going out of my chamber. So it's very important. Then अगर आपको काफ़ी ज़्यादा एक्ने है तो कुछ एंटीबैक्टीरियल क्रीम है या कुछ रेटिनॉइड सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट हम लोग देने की कोशिश करते हैं।
अगर आप पोस्ट मैरिज जा रहे हैं और आपको प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है तो उसके लिए अलग अलग प्रकार के हार्मोनल एसेस है जो हम करना चाहते हैं, और देन वी वांट टू वी ट्राई टू गिव यू medicines which will help you in conceiving later on. Then there is the complaint of obesity or rapid weight gain or difficulty to lose weight. These are the complaints. Then these patients, they need to do their 12-hour fasting serum insulin, their lipid profile, then there is blood sugar and thyroid function test. So what is the answer for all this? It is, of course, it is diet and exercise and lifestyle modification is must. Otherwise, you are not going to get help with these problems. What happens if we do not treat our PCOS? अगर हम चलो हमने मान लिया कि हम अभी मुझे तो कुछ करना नहीं है, बॉडी भी मेरा ठीक है, मुझे कोई परेशानी है, हाँ सोनोग्राफी में बताया गया कि मुझे पीसीओडी है, तो नहीं ट्रीटमेंट किया तो क्या होता है? If you don't get treated, then there are chances in future you may develop endometrial hyperplasia. जो inside lining है यूट्रस की, that is called endometrium, वहाँ की लाइनिंग बड़ी होती है या मोटी होती है, उसको हाइपरप्लेजिया बोलते हैं, और इन फ्यूचर इट कैन गो अहेड विद कैंसर. देन देयर आर चांसेस, अगर आपकी इंसुलिन लेवल प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं होगा तो आप ओबेसिटी में तो लाइन अप होंगे, साथ ही साथ में टाइप 2 डायबिटीज में भी लाइन अप होंगे. एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने की पॉसिबिलिटी होती है जिसमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन एंड ओबेसिटी होती है. You may have depression and anxiety in future. There are disorders of lipid metabolism. आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई हो सकती है, आपको कार्डियोवास्कुलर डिसीज यानी जो ब्लड सप्लाई होता है हार्ट को वो आपका कम होता है, और आपको बाद में हार्ट अटैक वगैरह आने के चांसेस काफ़ी होते हैं. दोज वुमेन हु आर विद पीसीओएस, क्योंकि पीसीओडी के साथ में आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है जिसमें आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, डायबिटीज़ भी होने के चांसेस होते हैं. तो इसी के साथ साथ में आपको कार्डियोवास्कुलर डिसीज भी हो सकता है. वेट गेन और ओबेसिटी तो इसके साथ में आता ही है. यू हैव हाई चांसेस ऑफ मिसकैरेज और अबॉर्शंस, एंड देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड स्लीप एपनिया. जो पीसीओडी पेशेंट्स होते हैं जनरली क्या होता है, उनकी हेल्थ ज़्यादा होती है, लाइक ओबेसिटी जो हम लोग बोल रहे हैं, मोटापा जो बोल रहे हैं, उसमें क्या होता है उनकी जो नेक का पोर्शन है वो काफ़ी वेट लाइक शॉर्ट नेक ऐसे रहेगा. तो शॉर्ट नेक की वजह से क्या होता है, जब वो सोते हैं तो उनकी जो सांस लेने की जो कैपेसिटी है, जो नींद में क्या होता है सडनली आपकी सांस रुक जाती है, चोक हुआ, सॉर्ट ऑफ चोकेज बोलेंगे. इसमें आपकी जो रिदम है नींद की वो बराबर नहीं आती, यानी आप उसका एक अलग स्केल होता है जिससे हम लोग उसको मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्लीप एपनिया. दिस कंडीशन इज नॉट गुड. अगेन स्लीप एपनिया में आपके ब्रेन को जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो काफ़ी कम होता है. दिस इज नॉट गुड फॉर यू. देन देयर इज this NASH, that is non-alcoholic steatohepatitis, which is particularly present if you are obese. And then there is acanthosis nigricans, that is dark skin patches होते हैं under the arms or nape of the neck, groin area or on the back of the neck. And you will have higher chances of autoimmune thyroiditis, thyroid होने की possibility रहती है. There is risk of ovarian and breast cancer. Though it is not significantly increased in these patients, they have a risk of endometrial hyperplasia and cancer. Endometrial cancer. So you should stop eating junk food. You should have nutritious diet and supplement, improve your immunity. Switch to natural and organic food. And if you have a genetic tendency, you should be always happy. Try to control your weight. Do regular exercise. Have a positive mindset that will help you to decrease the genetic tendency to a certain extent. And if you are having obesity or insulin resistance, then you should have proper medication, whatever your doctor has prescribed. You should complete the course and do regular exercise. Yeah, this lifestyle modification is permanent for you if you are having PCOS. Certain do's and don'ts. So what are the do's? You should be fit as you can. You should have a well-balanced diet, no junk foods, no pizzas, no carbonated drinks. You should have good personal hygiene because obesity tends to have excessive sweating or oily skin, and if you do not clean your skin properly, you may develop fungal infections. You may, because of insulin resistance, you have a tendency for diabetes, and your sugar level may be high. Then there is a tendency for fungal infections again.
If you are overweight, you should lose 5 to 10% of your weight. Like if you are, for example, you are having 70 kg of your height is 5'1" or 5, and your weight is around 70 kg, then how much weight you should lose? In how many months? You should lose around 5 to 10%. I approximately tell my patients, अगर आप 70 kg के हो तो आपको 60 kg लूज करना है. तो ये 60 kg आपको कैसे लूज करना है? तो ये 60 kg वेट आपको 6 महीने में लूज करना है. अगर आप उसको सिंप्लीफाई करते जाओ तो पेशेंट्स को समझने में और आपको भी टारगेट को ब्रेकअप करने में काफ़ी आसानी होती है. देन इट सीम्स अचीवेबल. लाइक अगर आपको 70 kg का वेट बताया है आपका और आपको हम 10% कम करने बता रहे 6 महीने में, तो आपको 6 महीने में 7 kg कम करना है. अगर 6 महीने में 7 kg आपको वेट कम करना है तो हर महीने में 1 से 1.25 किलो वेट कम करना है. नाउ सी इट सीम्स सो गुड. 7 kg वजन कम करना है मेरे को और 6 महीने में बोल रहे हैं मैडम कैसे होगा? तो ये अगर आप सिंप्लीफाई वे में करने जाए कि हर महीने में 1 से 1.5 किलो करना है तो आपको अच्छा लगेगा और इट्स इजीली अचीवेबल. अब अगर आप सडनली बोले कि मैं 1 महीने में या 2 महीने में 7 kg वेट कम करूँ तो ये गलत होगा, क्योंकि जितना फास्ट आप वेट कम करने की कोशिश करोगे उतना ही वो फास्ट रिगेन होता है. Without knowing your brain, without telling your brain that you are losing weight, you should lose weight. क्योंकि हमारे ब्रेन की टेंडेंसी होती है जितना वेट आप कम करेंगे वो हमारा जो पहले का वेट है प्री एक्सरसाइज या इसके प्री डाइट का जो वेट है वो इजीली फिर से अचीव कर लेता है. तो उसके लिए आपको ग्रेजुअल वे में लूज करना है विदाउट टेलिंग योर ब्रेन दैट यू आर लूजिंग वेट. सडन वेट लॉस नहीं होना चाहिए. कोई भी हालत में आपका सडन वेट लॉस जरूरी नहीं है. आपने एक टाइम पीरियड बाय करना चाहिए. लाइक 6 महीने में आपको 10% करना है तो आपको कैलकुलेट करना है. 80 kg है तो आपको 8 kg कम करना है. 1.5 kg अगर आप हर महीने में कम करते हैं तो इट इज़ वेरी इजी एंड इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट लेटर ऑन. But your exercise and diet control should be continuous. Otherwise, what will happen? As soon as you stop doing exercise, you regain the weight. बहुत सारे बच्चियां हमारे पास आती हैं और कहती है मैडम मैं जिम लगाया था तब तक तो सही था, तब तक तो देखिए ना आप मेरा वेट कितना फास्ट कम हो गया था, पर जैसे जिम बंद कर दिया मेरा वेट फिर से बढ़ गया. जो डांसर्स है जो रेगुलरली डांस करती हैं दे कम एंड दे से कि मैडम डांस कर रहे थे तब तक तो सही था पर डांस बंद कर दिया तो वेट गेन हो गया. तो इसलिए ना भाई हमारे फैमिली ने बोल दिया कि अभी डांस लगाना ही नहीं, डांस से वेट बढ़ता है. मतलब ये मिथ अपने आप में खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, खुद ही बातें कर रहे हैं. ऐसा नहीं होता है. आप बैठे बैठे खाएंगे तो बैलेंस के जैसा आपका पेट बढ़ने वाला है. तो आपको एडिक्वेट एक्सरसाइज, योगा, डाइट कंट्रोल इज लाइफ लॉन्ग बिकॉज दिस इज अ लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम अलॉन्ग विथ यू. अब आप जो मेरे हिसाब से आप कॉलेज के बच्चियां हो जो रायसोनी की बच्चियां हैं तो ये आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए. यू आर इन अ मैरिजेबल एज राइट नो. 18+ की सारी बच्चियां होंगी ऐसा मैं मान के चल रही हूँ. तो यू शुड प्लान योर प्रेगनेंसी बिफोर द एज ऑफ 35 ईयर्स. नाउअडेज क्या होता है करियर की वजह से हम लोग काफ़ी लेट प्रेगनेंसी रखने की बात होती है. पहले के ज़माने में क्या था 30 साल के पहले आपको फैमिली कंप्लीट करने की बात होती थी. अभी देखिए स्टेटमेंट हैज चेंज. प्लान द प्रेगनेंसी बिफोर द एज ऑफ 35. तो ज़माना बदल गया है. तो आपको क्या करना चाहिए आपकी जो ये आपका रिप्रोडक्टिव करियर भी इक्वली इम्पोर्टेंट है जैसा आपका एकेडमिक करियर है. आप एकेडमिक्स की तरफ तो ध्यान देंगे बट रिप्रोडक्टिव राइट एज में शादी करना, राइट एज में मैरिज करना और राइट एज में बच्चे पैदा करना भी आपको इक्वली ज़रूरी है. अदरवाइज अवर बॉडी एजेस. और बॉडी के एज होने के बाद में क्या होता है आपके जो एग्स होते हैं जो ओवरी होती है उसमें जो एग्स होते हैं उसकी संख्या धीरे धीरे कम हो जाती है. और वो कम होने के साथ साथ में आपको प्रेगनेंसी अचीव करना डिफिकल्ट होता है. स्पेशली पीसीओडी में ये ज़्यादा कॉमन है. और प्रॉपर वे में आपको आपके डॉक्टर से समय समय पर सलाह लेते रहना चाहिए. व्हाट आर द डोंट्स? डोंट्स के बारे में हम लोग काफ़ी हद तक डिस्कस कर चुके हैं. ये सारे फूड जो ये लेडी या ये बच्ची जो खा रही है इसमें नहीं खाना चाहिए. यू शुड अवॉइड योर सीडेंटरी लाइफस्टाइल. आराम से बैठे रहने की आदत बंद कीजिए. बैठे जगह पे मम्मी से पानी मांगना या मम्मी के साथ में कोई भी हाथ ना बटाना बंद कीजिए. आपने उठ के अपना काम खुद करना चाहिए. उल्टा घर में भी हेल्प करनी चाहिए. स्ट्रेस को अवॉइड करना चाहिए. अननेसेसरी बातों का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए. स्पेशली स्ट्रेस होता है आजकल हमारे पास कनेक्टिविटी ओवर हो गई है. बहुत ज़्यादा हम लोग लोगों से कनेक्ट होने लगे हैं. मोबाइल उठाए तुरंत झगड़ा कर लेते हैं, मोबाइल उठाए तुरंत बात कर लेते हैं.
तो ये अवॉइड होना चाहिए। कोई भी प्रकार का टेंशन या कोई भी प्रकार का स्ट्रेस लेने के पहले 2 बार सोचिए, उसके बाद में आप फोन कीजिए, सो दैट योर स्ट्रेस इज लेस। देन स्ट्रेस पढ़ाई का भी होता है, स्ट्रेस आपको अगर इस एज में आपको कई सारे स्ट्रेस होंगे, करियर का स्ट्रेस है, आप अगर एंगेज हो तो बॉयफ्रेंड का स्ट्रेस है, तो ये प्रकार के स्ट्रेस आपको कम से कम होना चाहिए, इसके पहले से आपको केयर लेनी चाहिए, हेल्दी रिलेशनशिप रखना चाहिए। इस एज ग्रुप में आप लोगों को आपके पेरेंट्स के साथ में काफ़ी मतलब स्ट्रेस होता है, स्पेशली माँ के साथ में नहीं जमता, क्योंकि माँ बार बार टोकती है। तो ये बातों को भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी कहीं कुछ आपकी मम्मी बता रही है या आपके गार्जियन आपको बता रहे हैं, वो आपके अच्छे के लिए बता रहे हैं। तो ये आपको समझना चाहिए, आपको उनके रोक टोक को मना मतलब उनकी जगह पे रह के अपने आप को रख के सोचना चाहिए। फास्ट फूड की बात हुई तो फास्ट फूड तो जैसे मैदा, बेसन और तली हुई चीज़ें आपको टोटली बंद करना है, चिप्स, बर्गर्स, पिज्ज़ा सब बंद करना है। अगर आप बहुत ओबेस है तो, बट अगर आप मॉडरेट वे में हैं, आपका वेट बैलेंस्ड है, तो आप थोड़ा थोड़ा खा सकते हो। बैलेंस्ड मतलब पोर्शन साइज ऑब्जर्व करके थोड़ा थोड़ा पीस आप खा सकते हो। मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शन नहीं रखना चाहिए दिमाग में, और हाइजीन प्रॉपर रहना चाहिए आपका, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि आपके एज ग्रुप में हाइजीन का बहुत प्रॉब्लम होता है। और अल्कोहल और स्मोकिंग तो एब्सोल्युटली नहीं करना। तो आपको अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स है, लाइक इरेगुलर पीरियड है, वेट गेन हो रहा है, वजन बढ़ रहा है, एक्ने है, पिंपल्स है, या आपके बाल झड़ रहे हैं, एक्सेस बाल आ रहे हैं फेस के ऊपर, इनमें से कुछ भी अगर है तो आपको आपके डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना चाहिए।